Hello, my dear students. Myself, Dr. Pravinder Singh. Today we will discuss about the pregnancy diagnosis. And the pregnancy diagnosis is the procedure to ascertain the presence of conceptus in uterus. And the purpose of diagnosis, किस लिए हम diagnosis करते हैं? It an accurate and early pregnancy diagnosis is very essential because of it helps in identification of non-pregnant animal, which help to be treated and rebort एट द अर्लीस्ट। तो हम जो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देन इट इज रिक्वायर्ड वेरी सर्टिफाइंग दैट एनिमल फॉर सेल पर्पज। हम अगर पशु को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसको अलग करते हैं। इट्स हेल्प इन ए गुड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक वैल्यू and to prevent the lapse of one season of breeding in seasonal breeders, to reduce the waste in breeding and program using expensive hormonal techniques. The next one is the pregnancy diagnosis in cattle and buffalo. Cattle buffalo के अंदर हम कैसे करते हैं? There are several external and internal identification of pregnancy in animals. First one is external indicators. हम बाहर से animals को देख के उसकी pregnancy है उसको confirm करते हैं. First one is breeding history. अगर breeding history है कि हमने breeding करवाई है, इतने animals के बाद हिट में नहीं आ रहा तो वो pregnant है. Second one is the congestion of ईस्टर साइकिल है उसका कंडीशन हो गया वो। एंड डेवलपमेंट ऑफ अडर है वो बेसिकली 4 से 5 महीने के बाद दिखाई देता है। एंड इन केस ऑफ गेस्टेशन ऑफ फीवर्स आफ्टर द 7 to 8 month ऑफ गेस्टेशन दी प्लूरीपेरस एंड इन older एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर एंड द नेक्स्ट वन इज रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट। जो at the end of the gestation period, the pelvic ligament of the cattle and buffalo gets shortenings. That's why there is a relaxation of pelvic ligaments. The next one is abdominal development of fetus from the 6th month onwards in lower right flanks. And in case of fetal heart auscultations, that can be feel up to 6 to 7 months of onward from the right flanks. Then if you put a glance on the internal indicators, that is the vaginal examination, vaginal speculum can be taken, and thick mucus discharge at rectal os and pregnancy seal can be checked. There is dry and pale vaginal in closed cervix. Rectal palpation is the most important method that is followed in our clinics. It is most practical and inexpensive and immediate methods. तो हम 35 दिन के बाद एक अच्छे वेटनेरियन से इसको करवा सकते हैं। एट द 55 to 60 days of gestation, there is avoid to amniotic vesicles rupture and early embryonic death. The next one is the pregnancy diagnosis in cow. Cow के अंदर हम कैसे करेंगे? There is various method for pregnancy diagnosis. The first one is managemental methods. The second one is ultrasound methods. Next one is radiography methods. Next one is vaginal biopsy and laboratory methods and clinical methods. तो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट मेथड। मैनेजमेंट मेथड को हम कैसे करेंगे? इट इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ सर्विस बाय बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नॉन रिटर्न टू द ओइस्टर्स। इट इज नॉट ए रिलायबल मेथड। मैनेजमेंट मेथड का मतलब ये है कि हमने उसकी नेचुरल मेटिंग करवाई है या फिर एआई करवाई है और वो दोबारा हिट में नहीं आई, तो इस मीन्स it's pregnant and the animal apparently may not return to the various reasons than pregnancy. कई बार क्या होता है कि एनिमल का ईट में ना आना कई कारण हो सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी रिलायबल मेथड नहीं है। द नेक्स्ट मेथड इज प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन काउ is ultrasound method. There is very different type of machines available. In most commonly used machines are today are B models of real time, meaning that they are produce an obstetrics image in real time. They are range from 3.5 to 7.5 mHz. With a greater mHz you see the more detail, have less depth penetration. तो अल्ट्रासाउंड मेथड है वो काफ़ी रिलायबल होता है। ये 30 days पे हम कर सकते हैं काउ के अंदर। The next is laboratory methods. If we go for laboratory methods, then we took blood in milk progesterone level is जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर कॉर्पस लुटियम प्रसिस्ट करता है और कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है कंटिन्यूसली। तो हमें जो ब्लड के अंदर कॉर्पस लुटियम है उसका लेवल चेक करना है। फॉर दिस लेवल वी यूज एज इंडिकेटर फॉर द प्रेगनेंसी इन द मेथड्स, एंड दिस मेथड इज there is several disadvantage of these methods.
and test is to be conducted at the 21 to 24 days after the insemination. And इसके लिए क्या होता है, it's require manual dexterity in handling of the equipment. उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का नेक्स्ट मेथड क्या है, क्लिनिकल मेथड है. क्लिनिकल मेथड, दिस मेथड कैन बी मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट रिलायबल. ये बहुत ही रिलायबल मेथड है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिनिक के अंदर पेरेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं और एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं वो देखते हैं. जो बेसिकली जो फीटस होता है वो लेफ्ट हॉर्न के अंदर ग्रो करता है. तो जो हम दोनों हॉर्न चेक करते हैं कि उसके हॉर्न के अंदर स्वेलिंग है तो एनिमल प्रेग्नेंट है. नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बाय द रेक्टल पैल्पेशन. इसमें क्या होता है कि रेक्टल पैल्पेशन में स्ट्रक्चर टू बी पैल्पेटेड, स्ट्रक्चर जो हमें पैल्पेट करने होते हैं. फर्स्ट इज सर्विक्स. सर्विस इज चीपली लैंडमार्क टू सर्विंग द गाइड ऑफ लोकेटिंग द अदर स्ट्रक्चर्स. The position of cervix can be indication of the stage of pregnancy, but diagnosis should be never be based on the cervix alone. Next is uterus, and most of the diagnosis is based on the uterus, that its content. The size of uterus influence its position, and relation of the pelvis should be noted, and the thickness should be tone of uterine wall to be important. इसमें क्या होता है कि यूट्राइन वॉल है उसकी थिकनेस है वो बढ़ जाती है और यूट्राइन वॉल है वो काफ़ी थिनर करती है बाय द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट टू द कंपेयर टू द यूट्रस ऑफ वी कैन से नॉन प्रेग्नेंट एनिमल. उसके बाद क्या है, फिटल मेम्ब्रेन स्लीप. अगर हम जेंटली ग्रिप्स करें बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर तो उसमें क्या होता है कि क्रोनिक मेम्ब्रेन होती है वो डिटेक्ट करती है, तो उसकी स्लीपिंग वो होती है, वो फील कर सकते हैं. देयरफॉर द टर्म स्लीपिंग ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस प्रोसीजर्स. तो ये हम 120 दिन के ऊपर इनफ होती है, 120 दिन के ऊपर हम चेक कर सकते हैं फिटल मेम्ब्रेन की स्लीपिंग. और द कंटेंट ऑफ द यूट्रस इज अ मोस्ट पॉजिटिव डायग्नोस्टिक सेक्टर टू बी पैल्पेटेड. आफ्टर 90 days fetus can be palpated, expect during the period from 170 to 230 days. तो 170 और 230 डेज के बीच में हम फिटस को पल्पेट नहीं कर पाते क्योंकि फिटस है वो अब्डोमिनल कैविटी यानी आगे की तरफ चला जाता है, तो इसलिए वो हाथों को पल्पेट नहीं हो पाता. तो ये एक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन काऊ के अंदर हम कैसे कर रहे हैं. इसमें अम्नियोटिक वेसिकल्स है वो हम वो उसको भी चेक कर सकते हैं. फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 30 to 65 days gestation, the amniotic vesicles can be detected as a movable oval within the uterine movements, and the vesicle is turgid early in the pregnancy but become flaccid with advancing the pregnancy until the 65 to 70 days. The next is amniotic vesicles can be first to be palpated at the 35 days when it's 7.5 mm in diameter and 42 days in diameter of 15 mm at the 48 days. और 48 डेज के ऊपर 35 mm नोट करेंगे और 52 डेज के अंदर हम 55 mm नोट करेंगे. आफ्टर 60 days the vesicles become softer with allowing recognition of small fetus directly. और ये next one is placentum. The presence of placentum is another positive sign of pregnancy. जो प्लेसेंटोम होता है उसकी जो प्रेजेंस होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट साइन होता है. इट कैन बी डिटेक्ट फ्रॉम द अबाउट दी 75 डेज के ऊपर हम डिटेक्ट कर सकते हैं. सिंस देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द साइज अमंग द इंडिविजुअल प्लेसेंटोम and useful to be diagnosis in the pregnancy limited, and in general they are detected as a soft thickness lumps in the uterine wall. Next is the palpation of fetus. Of course the presence of fetus itself is the sign of pregnancy. Depending upon the skill of examiner, the location of fetus and fetus can be palpated from the time to amniotic softening. Fetal growth is quite uniform after about the 6th month, so that the fetal size can be used to estimate the fetal age accurately. Next one is pregnancy diagnosis in cow. तो इसमें फिटस का साइज अलग अलग दिखा रखा है. अगर हम माउस साइज फिटस की बात करें 2 मंथ पे होगा, रेड साइज थोड़ा बड़ा होगा उससे 3 मंथ पे हो जाएगा, स्मॉल कैट तो 4 मंथ पे जो फिटस है वो छोटी जो बिल्ली होती है उसकी साइज का होगा. देन बिगल डॉग होता है उसकी साइज का 6 मंथ पे हो जाएगा. फ्री मार्टिस डेज हम देख सकते हैं 120 डेज के बाद हम फ्री मार्टिस क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं
bilaterally at 1 to 10 days. देन और amniotic vesicles है, उसकी साइज है वो डिफरेंट डेज के ऊपर डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से मिलती है। अगर उसका साइज है 1 इंच है तो वो 42 डेज के ऊपर मिलेगा। अगर 5 इंच है तो 65 डेज की मिलेगा, और 2 है तो 48 पे, 3 है तो 52 पे, 4 है तो 58 पे, और 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है तो 62 डेज के ऊपर मिलेगा। देन ओवरीज, हाँ, दीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ दी फीमेल्स। इसमें क्या चेंजेस मिलेंगे आपको? दी ओवरी कैन बी palpated up to the about the 120 days. The structure on the ovary can be felt confirm either the positive or negative diagnosis. Pregnancy is also accompanied by the corpus luteum. नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी ओवरी का हम साइज देखें तो कॉर्पस, ये एक नॉर्मल ओवरी है काऊ की। इसमें हम देख रहे हैं कि देयर इज टर्शरी फॉलिकल्स, देयर इज रेगुलेशन ऑफ एपिथेलियम्स, एंड देयर इज परसिस्टेंस ऑफ कॉर्पस लुटियम। Next is the pulse of pregnancy. We can say the pre-Martis. Pre-Martis can be helpful in confirming the diagnosis of, also the confirming the viability of calf, and particularly at the certain age of pregnancy. And it can be felt in the middle uterine artery which supply blood to the fetus. जो middle uterine artery है, जैसा कि पहले बताया गया आपको, वो हमारे यूट्रस को सप्लाई करती है, और उसकी जो उसके अंदर पल्सेस नोट होती है एट 120 days. By the 120 days of pregnancy, the middle uterine artery have very enlarged and sufficiently to be used as different diagnosis for the pregnancy. Next one is the enlargement of the uterine artery is ipsilaterals to be pregnant horn to be detected at 80 to 90 days. By approximately 130 days, there is blood flow within the ipsilaterals uterine artery also increased, and point at which turbulence to palpate as the bulging sensation. Next is the palpation at 35 to 40 days. तो 35 to 40 डेज पे हम क्या देखेंगे? यूट्रस इज ऑन फ्लोर ऑफ पेल्विस, पेल्विस के फ्लोर पे होगा, एक्सेप्ट इन लार्ज काउ। और फिटल मेम्ब्रेन स्लिप हम उसको नोट कर सकते हैं। पैल्पेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम है वो नॉर्मली फील होता है इस स्टेज के ऊपर। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन काउ, डायमीटर ऑफ प्रेग्नेंट बोवाइन यूट्राइन हॉर्न एट डिफरेंट स्टेज। जो यूट्राइन हॉर्न है वो डिफरेंट स्टेज पे कितना होगा? तो उसमें 30 डेज पे स्लाइट इनलार्जमेंट एंड डोर्सल बल्जिंग। एट द एज ऑफ 60 देयर इज diameter size is 7 centimeter, and at 90 8 centimeter. At 120 days there is 12 centimeter, 150 days at 18 centimeter. Then is pregnancy diagnosis in cow. Then pregnancy palpation at 45 to 50 days. तो क्या है उसमें फिटल मेम्ब्रेन स्लीप है वो ऑब्जर्व होता है। द यूट्रस स्टिल ऑन पेल्विक फ्लोर एंड स्लाइटली ग्रेटर डिफरेंस इन साइज, एंड palpation of corpus luteum on the ovary adjacent to gravid horn. Next in pregnancy palpation at 60 days. 60 days पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो gravid uterine horn है, it will be very dropping and slightly over the brim of pelvis and feel like a balloon filled water, and fetal membrane slip is very present, and corpus luteum on the ovary adjacent to gravid horn. Next one is palpation at 90 days. 90 days में क्या होगा? यूट्रस होगा वो पेल्विक ब्रिम के ऊपर आ जाएगा, एंड अप टू 8 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर उसको हम नोट करेंगे। द फिटस विल बी 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इजिली पैल्पेटेड, और कॉर्पस लुटियम ऑन द फ्लोर ऑफ एडजेसेंट टू ग्रेविड horn. और अगर हम पैल्पेशन देखें 120 डेज पे क्या होगा? यूट्रस विल बी वेल ओवर द ब्रिम ऑफ पेल्विस विद द cervix full almost the pelvic brim, and the fetus can be easily palpated with the form of 25 to 30 centimeter long, and a small placentome can be identified, and the ovary may be difficult to reach, but the corpus luteum to be present adjacent to the gravid horn. अगर हम देखें 150 डेज पे क्या होगा? the corpus luteum pulled to very into abdominal cavity. 150 डेज के ऊपर कॉर्पस जो यूट्रस है वो abdominal cavity की तरफ चला जाता है,
and cervix will be located at the brim of pelvis, and a distinct placentome about the size of ovary can be identified at this stage. नेक्स्ट हम देखेंगे 5 मंथ यानी द फिटस वेल फॉर्म्ड एंड 35 to 40 सेंटीमीटर लेंथ बट डिफिकल्ट टू रीच द लार्जर काउ. अगर हम पल्स ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, फ्री डिमाइटिस विल बी क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड आर्टरी बीइंग 6 मिलीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. अगर हम पैल्पेशन की बात करें 170 to 230 डेज के ऊपर, तो सर्विक्स है, सर्विक्स बी एट द ब्रिम ऑफ द पेल्विस, डोर्सल वॉल ऑफ द यूट्रस टू बी टाइट एंड डिफिकल्ट टू पेल्पेट. वो डोर्सल वॉल है यूट्रस की, वो पेल्पेट नहीं होती, और यूट्रस है वो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है. एंड द फिटस विल बी वेरी इन साइज एंड मे बी डिफिकल्ट टू पेल्पेट बिकॉज ऑफ द टाइट यूट्राइन वॉल. नेक्स्ट वन इज पेल्पेशन एट 170 to 230 days, where is uterus will be difficult to palpate, particularly in larger cow due to the depth of abdominal cavity. There will be strong pulse of pregnancy and artery will be 1.25 to 1.4 centimeters in diameter. अगर हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की बात करें भाई, अल्ट्रासाउंड की तरफ से देखें हम तो, और रेडियोग्राफी का यूज करें तो, अगर कैटल बफेलो में बात करें तो 20 to 30 डेज के ऊपर इम्यूनिक वेसिकल्स और हार्ट बीट है वो फॉर्म हो जाती है. शीप गोट की बात करें 20 to 22 डेज के ऊपर फिटल फ्लूइड देखने को मिलता है. सो के अंदर की बात करें तो हम फिटल फ्लूइड देखने को मिलेगा 24 दिन के अंदर. बीच की बात करें तो 25 to 28 डेज पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं एंड फिटल पार्ट एंड हार्ट कैन बी सीन. इन मेयर की बात करें तो 9 to 12 डेज के ऊपर इम्यूनिक वेसिकल वो देखने को मिलती है. रेडियोग्राफी की बात करें तो अगर हम 75 से 90 दिन के शीप में और गोट में अगर हम एक्सरे करें तो फिटल मेम्ब्रेन है वो नॉर्मली देख सकते हैं. बीच की बात करें तो हमें 35 to 45 डेज के ऊपर इसकी फिटल स्केलेटन देखनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज अदर मेथड ऑफ प्रेगनेंसी इन डायग्नोसिस फॉर स्पेसिफिक सम स्पीसीज. जैसे वेजाइनल बायोप्सी लेते हैं हम, शीप के अंदर लेंगे, ठीक है, एट एज ऑफ 40 डेज. उसमें क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दिखेंगे. सो के अंदर देखें तो हम देखें 30 to 35 डेज के ऊपर लेंगे, इसमें 2 to 3 लेयर ऑफ एपिथेलियम देखने को मिलती है. एब्डोमिनल पैल्पेशन की बात करें तो केनाइन के अंदर करेंगे 28 से 32 दिन के ऊपर. ए टेबल टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक टेबल टेनिस की बॉल के साइज का स्ट्रक्चर यूट्रस के ऊपर हमें फील होता है. उसके बाद हम देखते हैं रेक्टो एब्डोमिनल पैल्पेशन देखते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेल्ट कैन बी प्रेग्नेंट और नॉन ऑब्स्ट्रक्ट फेल्ट कैन बी नॉन प्रेग्नेंट. और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की बात करें शीप एंड गोट में तो एक्सटर्नल क्लिनिक एग्जामिनेशन तो होता ही है, एक्सटर्नल पैल्पेशन एब्डोमिनल अब्लॉटमेंट होता है इसमें. अदर तो रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी और हार्मोनल एसे होते हैं. हार्मोनल एसे के अंदर मैंने बताया है कि हम प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करते हैं. अल्ट्रासोनोग्राफी भी सेम मेथड है, मैंने इसके बारे में बताया है कितने डेज पे क्या मिलेगा. और इसमें अगर हम बाइनोमियल पैल्पेशन देखें तो उसमें क्या होता है कि दिस मेथड इन्वॉल्व द डिजिटल पैल्पेशन पर रेक्टम कंबाइंड विद एब्डोमिनल मैनिपुलेशन. इसमें क्या करते हैं हम, एक टू फिंगर है लेफ्ट हैंड की, वो अंदर उस रेक्टम के अंदर डालते हैं और पीछे से जो राइट हैंड है वो नीचे से लेके जाते हैं और जो मेमोरी ग्लैंड है उसके ऊपर से लेकर उसको पीछे की तरफ पुश करते हैं. तो डोज एग्जामाइंड इन दी मॉर्निंग बिफोर फीडिंग. फीडिंग से पहले इसको एग्जामाइन करना चाहिए ताकि वो प्रेशर न डालें, एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो. ओबेस एनिमल कैन बी फास्टेड ओवरनाइट, और अगर एनिमल ज़्यादा फैटी है तो उसको एक रात रखें. तो इसमें क्या होगा कि urinary bladder is emptied before examination and the examination is performed per rectum using the left index finger using assisted by finger of right hand. तो नेक्स्ट इज काउ, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है. देन समरी ऑफ रिकमेंडेशन कॉन्सेंटली प्रेगनेंसी, अगर इसकी बात करें तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी नेवर बी मेड अनलेस द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर कोई पॉजिटिव साइन ना हो तो हमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए. और ब्रीडिंग हिस्ट्री शुड बी सर्व एज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. ब्रीडिंग हिस्ट्री हमें हमारे पास जरूर होना चाहिए, उसके लिए हमें एनिमल से वो एनिमल के ओनर से पूछनी चाहिए ब्रीडिंग हिस्ट्री क्या है. देन रिकॉर्ड शुड बी कीप्ड डायग्नोसिस एंड
finding use of the best possible means of identification of animals. There are certain animals of certain stage of pregnancy when positive diagnosis is impossible. So pregnancy diagnosis in cow, the summary of the recommendation concerning the pregnancy examination. The golden rule advised one to the admit that diagnosis can be made on the recommended re-examination. और अगर ये कंफर्मेशन ना हो पाए किसी भी डायग्नोसिस की, तो ये एडवाइस होती है कि हमें दोबारा करनी चाहिए आफ्टर सम टाइम। तो उसके लिए हम कुछ टाइम मिक्सर वगैरह उसको एडवाइस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।